सोनम ही निकली बेवफा। तो सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? अच्छा, टिकट किसने बुक किया? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। पति दी मौत मगरों इन्ने दिन कित्थे सी सोनम। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। जानो हनीमून तो लैके कतल तक दी सारी दास्तान। 20 मई ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਮ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸੋਨਮ ਹੋ ਗਈ ਲਾਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋੜ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 20 ਮਈ 2025 ਦੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਪਹੁੰਚੇ। 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਸਟੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਹੋਮ ਸਟੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਰਾਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੌਗਰਿਟ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। 24 ਮਈ 2025 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਸੋਹਰਾਰਿਮ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। 25 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਦੇ 2 ਬੈਗ ਖਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਬਟੂਏ ਉਹ ਗਾਇਬ ਸਨ। 1 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ। 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NDRF ਨੂੰ ਵੀਸਾ ਵਡੋਂਗ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 150-200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਟੂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਅੰਗੂਠੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਇਹ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 3 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। 5 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਾਲਾ ਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨਮ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੈਕਟ ਸੋਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 6 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਕਾਮਾਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 8 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 3 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 9 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 3 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋਨਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम सामने आया है? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। अब ये वहाँ जाने को लेकर किसका प्लान था? शिलोंग जाने का प्लान राजा ने बनाया था या सोनम ने बनाया था? राजा को बाद में मालूम पड़ा? राजा को बाद में मालूम पड़ा था, तो राजा से पूछा गया था कि राजा ने मेरे से पूछा था, तो उसके भाई उनसे पूछा था, उनने भी मना कर दिया था कि राजा अभी अपन को नहीं जाना, अपन बाद में चलेंगे तीनों भाई। तो उसने बोला ठीक है भैया। फिर राजा ने बोला मम्मी उसने मेरी टिकट करा ली है, बोले कि है ना हमको वहाँ घूमने जाना है। तो मैंने कि कहाँ जाना है? तो बोले शिलम जाना। मैंने कि कौन सी जगह होती बेटा ये? तो बोले यहाँ पे चाय की पत्ती उगती ना, वहाँ पे। उन्हीं से बातचीत करेंगे, वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। और उसके पीछे उनकी बहू सोनम ने हत्या करवाई थी राजा कुशवाहा के साथ मिलकर, और कई सारे नाम सामने आए, विक्की ठाकुर, आनंद। सकेज नहीं हुआ, घबराहट सी हुई। जैसे उसके गले में चेन देखी ना, तो अंदर से डर लगने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए। और सीधे पूछेंगे, अब आपकी बहू का नाम सामने आ रहा है इसमें, क्या आपकी बहू ने हत्या करवाई है? क्या कहेंगी? सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। आप यहाँ से जब गए थे राजा, क्या कुछ आपकी बात हुई थी उनसे? और अब आपको वो सब चीजें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था, आपको आभास भी हो रहा था कि आपके बेटे के साथ कुछ गलत होने वाला है, आपका मन घबरा जैसा है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा आवाज हुआ। घर पे था जब तक कोई आवाज नहीं हुआ उसके साथ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा वैसा मेरा मन एकदम से घबराया। तो मैंने उसको बार बार फोन लगाया कि बेटा फ्लाइट कितने बजे की, बेटा फ्लाइट कितने बजे की। सोनम आई नहीं आई? वापसी के लिए नहीं, जाने की पहली बात तो। हाँ, फिर मैंने बोला बेटा तुम्हारे गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को भी बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया इस चीज़ की वजह से। देखो जरा इसी चीज़ की वजह से मेरे मन में यही ख्याल आया था कि मेरे छोरे की गर्दन नहीं कट जाए। मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में एकदम से ऐसे ख्याल आया था कि ये चेन की वजह से मेरे को छोरे को कोई नुकसान नहीं पहुँच जाए। अब वो नुकसान कौन सा था? ये तो वो बहाना था चेन का। तो अब तो सोनम जो है पुलिस हिरासत में है, पूछताछ होगी। नहीं, राजा तो 20,000 रुपए ही लेके गया था नगद केस में, बाकी तो उसने कार्ड लेके गया था। बोले मम्मी मैं इतने केस लेके जा रहा हूँ, बाकी जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पे निकालूंगा। ज्वेलरी थी सोनम के पास कुछ? सोनम ने तो घर की सारी ज्वेलरी दी थी, वो तो उसके घर रख के गई होगी, क्योंकि उसने तो बोला था मैंने खाली मिनी पहना है। और उसका नाम क्या, बिजासन, उसके सूटकेस में रखी हुई मिली, बिजासन पहनी थी। हमने बोला था 100 महीने तक उतारते नहीं है। घर वालों ने भी शायद इसको लेकर कुछ आप लोगों से कहा था? क्या कहा था? ये बिजासन वाली जो आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला जाओ जल्दी जाओ बिजासन के वहाँ नाक रगड़ के आओ, तुमसे कुछ गलती हुई। हमसे गलती नहीं हुई थी, उनकी लड़की से गलती हुई थी। उनकी लड़की ने सूटकेस के अंदर, डब्बी के अंदर आज भी बिजासन रखी, वो सूटकेस आप लेके आओ और उसमें डब्बी में बिजासन रखी है।
मेरे बेटे खुद ने आंख से देखा। विपिन ने बोले मम्मी जब सूटकेस खुल रहे थे ना, पुलिस वाले खोल रहे थे, तो उसमें तुम्हारी बहू ने बिजासन रख गई, बाकी कोई चीज भी नहीं है उसमें। उनके पिता का ये कहना है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, आप क्या कहते हैं? सीबीआई जांच की मांग कर लो, जो है वो सामने आएगा ही सरी। अच्छा, आपने कुछ फोटो वीडियो भी मांगे थे वहाँ से, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं भेजे गए? नहीं भेजे गए। वीडियो मंगे थे, फोटो मंगी थी, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। अच्छा, एक चीज और टिकट किसने बुक कराई थी? सोनम को जब सामने लाएंगे आपसे तो क्या? सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। पर आरोप लगा रही है पुलिस तो ये कह रही कि सोनम ने हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा के साथ मिलके। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कौन सी सजा की मांग करती? माँ है आप? माँ हूँ, फांसी की सजा से ही बढ़ के सजा चाहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ उसको जिंदा जलाया जाए। जब मेरे लड़के के साथ उसने ऐसा करा तो मतलब समाज में से उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम ने। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सोनम का गोविंद जी से पता चला है, गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फोन दिया है उसको, सोनम को, तो क्या बोलते हैं उसके भाई से बात हुई फोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। हाँ, तो गोविंद जी गोविंद जी शिलोंग में है? शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं, 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी, 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था? क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। आपके राजा के परिजनों से बातचीत? कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग? वो होटल में से दिख रहे हैं हमको, सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੋਨਮ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਢਾਬੇ ਤੇ पहुंची। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं। जी, मेरे नंबर पे।
फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं, वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा समझ, मतलब उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं, फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के बाद उनके साथ कोई और भी था? सोनम जी नहीं, वो अकेली थी। अकेले थे? तो कैसा क्या वो बातचीत करी थी फैमिली से? कुछ सुने आप जैसे कुछ family? बस वो कॉल लगा के भैया मैं यहाँ पे हूँ इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। आपने उसकी मदद की और क्या किया? पानी वानी पिलाया और मदद किया? बस पानी, और बाकी चाय वाय पूछे तो वो मना कर दे रही थी। फिर पुलिस ले गई। उसके बाद क्या पुलिस आपसे भी संपर्क की कोई चीज़ के लिए? पूछताछ? नहीं, वही बस स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि कहाँ पे आई, फिर उनको पता चल गया ना क्या केस है क्या नहीं है। हमको भी कुछ देर बाद पता चला। आपको भी पता नहीं था कि वो हाँ, मनी अब मैटर है? रात को 1 बजे कोई भी लेडीज आएगी इस अवस्था में, तो आप जाहिर से क्या ही सोचेंगे। ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਨਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उनने फ़ोन पे बात करी थी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है, तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो, तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है, तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 2 ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ। This is the moment which I would like to share with all of you about the breakthrough that made by the police force of Meghalaya. Meghalaya Police is pleased to announce a significant breakthrough in the investigation into the recent case involving the disappearance of a honeymooning couple from Indore, Madhya Pradesh, who went missing in the East Khasils district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Latitpur, Uttar Pradesh. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Sri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi.
In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nanganj police station in Gazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, NISAC, local intelligence units, and law enforcement agencies across multi-states, Dorbar Sora, West Jante Hills Monitoring Club, district administration, and media. Despite geographical and logistical challenges and sustained public and media scrutiny, our teams remain steadfast in their commitment to upholding the rule of law. We take this moment to reaffirm that the Meghalaya Police is committed to delivering justice with integrity, professionalism, and perseverance. We are deeply grateful to the families, the citizens of Meghalaya, and all our interstate counterparts for their cooperation and support throughout this complex investigation. Further updates will be shared as the legal proceedings advance. We respectfully urge the media and the public to allow the process of justice to take its course and to also refrain from any speculation. So this is the statement that I would like to flag off in front of you, and this is for the benefit and for the information of all the concerned in the state of Meghalaya, North-East as well as. ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ